Hello, dear friends. We are starting with the third chapter in your 11th standard physics syllabus. The name of the chapter is Motion in a Plane. Now, before we start with this chapter, we are starting with some basic concepts of things which would be needed in understanding this chapter. They are very, very basic. Let us start with it. The first thing to start with is the broad branch of physics called mechanics. मराठीत सुद्धा थोडंसं बोलीन, बीच बीच में हिंदी में भी बोलते रहूँगा. मैकेनिक्स. नाउ मैकेनिक्स को अगर हम लोग हिंदी में या मराठी में भी उसको ट्रांसलेट करें तो मैकेनिक्स मीन्स यांत्रिकी. नाउ यांत्रिकी ये वर्ड से कहीं don't get confused that this is to do with yantra. Yantra means machines. No, we are not doing anything with yantra. Yantriki means basically we are studying the status of a body, an object, which may be at rest or it may be in motion. So study of a body either at rest or in motion. If it is in motion, then what are the causes of that motion? All these things we study under this very broad branch of physics, in fact, the oldest branch of physics, we call it as mechanics. Now, mechanics is classified or rather studied in three categories. The first is statics, second is kinematics, and third is dynamics. Now, what is statics? Statics, well, statics word comes from the word stationary. Getting it? Statics means sthir, sthita. So stationary. So here in this branch of mechanics, we study a body at rest or in equilibrium even when forces act on it. At rest or in equilibrium. Getting it? Now, for example, if you have some body which may be at rest, for example, there is a car which is at rest on the road. Now you all may know that उसका वेट जो है वेट तो फोर्स रहता है, वो रिएक्शन में एक्ट हो ही रहा है, लेकिन ग्राउंड भी उसके ऊपर एक रिएक्शन देता है. तुम लोगों ने उसको पढ़ा रहेगा लॉन्ग बैक इन योर स्कूल लेवल अंडर न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो देयर इज एन एक्शन, देयर इज अ रिएक्शन. So in that case, there is an equilibrium and that car is at rest on the road. So this is statics. Second is kinematics. Now kinematics is study of motion of the body. We are going to study the motion of the body, but the condition is without considering the cause of its motion. So सिर्फ उसका motion study करो. For example, सगळे terms नंतर येणारच आहेत, but all of you know it. वेलॉसिटी आहे, डिस्प्लेसमेंट आहे, टाइम आहे, एक्सेलरेशन आहे, ऑल दीज कैटेगरीज विल कम इन दैट. तो वो हम लोग काइनेमैटिक्स में स्टडी करेंगे. थर्ड इज डायनामिक्स. नाउ डायनामिक्स में हम लोग एक्चुअली ये मोशन का कॉज स्टडी करेंगे. नाउ ऑल ऑफ यू कैन, एक सिंपल कॉमन सेंस है बच्चों, दैट एक बॉडी मूव होना शुरू हो गया तो अपने आप तो नहीं होगा, उसके ऊपर क्या एक्ट होना पड़ेगा? वेल, फोर्स. तो फोर्स इज द कॉज. तो ऐसा कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो जाए और उसके वजह से उसका मोशन स्टार्ट हो जाए, सो दैट इज डायनामिक्स. सो दैट वी विल स्टडी इन डायनामिक्स. तो न्यूटन ने दिए हुए लॉज ऑफ मोशन, वो जो कुछ फोर्स रिलेटेड है, वो सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे डायनामिक्स में. सो दीज आर द थ्री ब्रांचेस ऑफ mechanics. Okay, let us move ahead. Mechanics में ये दो words हम लोग बहुत यूज करते हैं, rest and motion. Well, नया नहीं है तुम लोगों को, everyone know what they mean, but in physics how do you actually define it is rest. Well, it is the situation of a body which is not changing its position with respect to its surroundings. विथ पैसेज ऑफ टाइम, यानी टाइम कितना भी उसमें पास होने दो, वो बॉडी उधर ही दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने तभी बोला एक कार पार्कड है. अब पार्कड है तो वो अब भी मेरे को दिख रहा है, कल सुबह भी देखूं तो मेरे को वही दिखेगा, कल दोपहर को भी वहीं पे रहेगा. तो इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, बट टाइम इज पासिंग. सो दैट इज रेस्ट.
What is motion? Well, that was the example that I gave you just now. What is motion? Well, motion is, well, the body is moving, which means it is changing its position with respect to its surroundings with the passage of time. So वही कार जो पहले पार्क्ड था तो मैं बोल रहा था at rest है, now it has started moving. Let us say I started moving it, so now I don't find it at that same position. Its position is changing with respect to time. Okay, so that is motion. But do you know the great and the funny and the strange thing about these two words, rest and motion? See here. What is this? Rest and motion are relative terms. Rest and motion are relative terms. Relative terms. यानी देखने का जो नजरिया रहेगा, इंग्लिश में उसको पर्सपेक्टिव बोलेंगे. अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है, अपना अपना नजरिया रहता है कि वो रेस्ट में अपने को दिख रहा है या इन मोशन दिख रहा है. एग्जाम्पल दे दूं? लेट अस से वी आर, I and my friend, we both are traveling in a train. We are together and we are traveling in a train. ठीक है. अब मैं मेरे दोस्त के साथ जब बात कर रहा हूं, मेरे को वो दिख नहीं रहा है कि वो ट्रेन के साथ में जा रहा है, बिकॉज हम दोनों ही साथ में जा रहे हैं ट्रेन के. दैट इज वाई मेरे को माई फ्रेंड, आई एम फाइंडिंग हिम टू बी एट रेस्ट. द फ्रेंड ऑल्सो फाइंड्स मी एट रेस्ट. However, if there is a third person who is standing on the station and watching the train pass by, he will definitely see both of us from the window that we are moving along with the train. So we are found to be in motion according to that third observer, but we both, means myself and my friend, we don't find ourselves moving. We find ourselves at rest. समझे कि नहीं? So ये सब relative terminologies है, ये सब perspective से decide होता है. So rest and motion are relative terms. Okay, let us go to a third basic concept, and that is, look at this. Ponder over these statements. Ponder यानी सोचो, सोचो इस statements के ऊपर. A moving car or a train is a point mass. Earth is a point object. अब ये वर्ड पढ़ते ही, पॉइंट ये वर्ड पढ़ा कि इमीडिएटली अपने दिमाग में सिर्फ एक डॉट सामने आता है. तो कैन यू रिलेट अ मूविंग कार, सच अ बिग कार, और अ ट्रेन? अ ट्रेन नाउअडेज हैज नथिंग शॉर्ट ऑफ 12 to 15 to 20 बोगीज. इतना बड़ा ट्रेन जो है, कैन इट बी कॉल्ड अ पॉइंट मास? Second statement तो और horrible है. Earth is a point object. Can you imagine Earth can be a point object? Well, the answer is yes. In physics, we can call them as point objects. Now, ये decide कैसे होगा? Point object यानी क्या? तुम लोग बोलेंगे point object यानी उसका पूरा जो mass है, त्याचा जो वस्तुमान आहे, mass आहे, that is supposed to be concentrated at one point. अब तुम लोग बोलेंगे इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को हम एक पॉइंट पे मास कैसे डिसाइड करेंगे या इमेजिन करेंगे? वेल, द आंसर इज, ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनके मोशन को देखो. कार है, मान लो 100 किलोमीटर आगे गया है, तो उसका जो मोशन हो गया, इट वेंट थ्रू 100 किलोमीटर्स. ट्रेन है, ट्रेन कैन गो थ्रू एनीथिंग. पुण्यापर्यंत जायचं असेल तर इट इज नियरली 200 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई. इफ यू आर गोइंग फ्रॉम मुंबई टू सातारा, देन इट कैन बी समवेयर अराउंड 400 किलोमीटर्स. सो द वैल्यूज आर बिग, माइंड यू. These distances are big. As compared to that, the size of the train would be, well, a train will have an overall length of somewhere around 100 meter या 150 meter. उसके सामने अगर 400 किलोमीटर का जर्नी करेगा वो ट्रेन, तो डोंट यू फील सो, उस जर्नी के मैग्नीट्यूड के सामने ट्रेन का जो साइज है वो छोटा ही मानेंगे, है कि नहीं? अभी अर्थ सन के अराउंड, सूर्याभोवती पृथ्वी फिरते. नाउ डू यू नो, नियरली 10⁻11 मीटर, जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करके बोलते हैं, तुम लोगों ने मेजरमेंट में उसको देखा भी रहेगा.
सन एंड अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻11 मीटर। 10⁻11 मीटर यानी 10⁹ किलोमीटर। 10⁹ किलोमीटर का मतलब 1 बिलियन किलोमीटर है बच्चों। 1 बिलियन किलोमीटर, इतना तो सिर्फ उसका रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ रहेगा। तो मान लो रेडियस इतना हो गया तो बच्चों सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2πr। नाउ इट इज सो लार्ज अ वैल्यू दैट उसके सामने अर्थ का जो डायामीटर है वो सिर्फ 12,800 किलोमीटर है, टू 12,800 किलोमीटर। कम ऑन, 12,800 किलोमीटर फॉर मी इज डेफिनेटली ह्यूज, बट इन कंपैरिजन विद दैट ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, दैट साइज लुक्स अ पॉइंट। तो उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिजिक्स में कुछ भी पढ़ने को स्टार्ट करते ना तो पहले छोटे पैमाने पे, छोटे लेवल पे उसको स्टार्ट करो। मैकेनिक्स को पढ़ोगे तो पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के नाम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, समझा सबको? लेट अस प्रोसीड नाउ। ओके, अब मोशन पे जाते हैं। मोशन 3 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू the way it moves in as seen from the surroundings। पहला है जो तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन मराठीत त्याला एक परिमाणात जी गती असते, एक परिमाणात, किंवा त्याला रेखीव गती सुद्धा म्हणतात, रेखीव गती, वन डायमेंशनल मोशन। अब ये क्या रहता है? लुक एट द स्टेटमेंट देयर विच एक्सप्लेन्स इट। इट सेज ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। बच्चों सबको मालूम है हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में कितने एक्सिस होते हैं? बच्चों 2 तो तुम लोग ड्रॉ करते हो पेज के ऊपर, तुम्हारे पेपर के ऊपर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बट 2 ही नहीं, एक्चुअली स्पेस में 3 होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसका मतलब किसी भी पोजीशन को हम लोग जब दिखाते हैं ग्राफ में तो जनरली स्पीकिंग उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, नेमली एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? वन डायमेंशनल मोशन अगर रहेगा तो 3 कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा विथ टाइम। समझे कि नहीं? इन अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन बोलते हैं। अब उसका एक डायग्राम फॉर्म दिखा रहा हूं। सी हियर बच्चों, ये मैंने हॉरिजॉन्टल एक एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, सबने पहचाना रहेगा ये एक्स एक्सिस है, वो ओरिजिन है, this is the origin, this is the origin, okay, and that's the x-axis. Okay, now let me show you 2 points on this. Let us say this is point P and this is point Q. तो point P मेरा यहाँ है, point Q मेरा यहाँ है। अब उसके पोजीशंस को हम लोग जनरली कैसे दिखाते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट से। तो इसके कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा x1, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, 0। तो एक ऑब्जेक्ट अगर है, पहले पॉइंट P पे है और अब वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस वो गया पॉइंट Q तक, तो क्या हो गया बोलो? उसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो गया है, देखो y कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो गया, z तो मैंने लिखा भी नहीं है। सो सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। यू कैन ऑल्सो शो अ सिमिलर सिचुएशन। लेट अस से ये देखो, मैं एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, डोंट माइंड द ड्रॉइंग, इट्स वर्टिकल। तो लेट अस से ये ग्राउंड लेवल है, मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकता हूँ। लेट अस से ये
सॉरी, लेट अस से ये ग्राउंड लेवल है जहां पे उसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0। अब एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूं, लेट अस से वो ये पोजीशन तक गया वर्टिकली अपवर्ड, तो अब उसका कोऑर्डिनेट्स होगा 0, y। बच्चों क्या चेंज हो गया देखा? अब x कोऑर्डिनेट वो ही रह गया है लेकिन y कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज हो गया ना। सो दिस वुड बी a one dimensional motion. So either a horizontal motion or vertical motion, we categorize it as one dimensional motion. Okay, now any example? Yes, I was talking about a car parked. Now it has started moving. Say there is a straight road along which it is moving. So that is one dimensional motion. आप bicycle चलाते हो, सायकल चालवता, तर सायकल चालवत असाल तर समजा रस्ता स्ट्रेट असेल तर तुम्ही सायकल स्ट्रेट घेऊन चाललेले आहात. दॅट इज वन डायमेन्शनल मोशन. ठीक आहे. लेट अस गो टू द नेक्स्ट कंडिशन. व्हाट इज दैट? टू डायमेन्शनल मोशन. डेफिनिशन देखो. Two of the three coordinates specifying the motion of the object change with time. Two of the three. यानी मान लो ये देखो डायग्राम, ये मैंने फिर से एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया है. ओके, अब एक काम करते हैं. आई विल शो यू 2 points ऑन दिस. लेट अस से दिस इज 1 point. इसको मैं पॉइंट P लिखता हूं. याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत x1, y1. एक ऑब्जेक्ट इथे आहे, इथून तो गेला इथपर्यंत. हा आहे पॉइंट Q. याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत x2, y2. आता काय दिसतंय? यू कैन सी दोनों कोऑर्डिनेट्स इसमें चेंज हो गए हैं. x कोऑर्डिनेट चेंज हो गया फ्रॉम x1 टू x2, y कोऑर्डिनेट चेंज हो गया फ्रॉम y1 टू y2. दिस इज व्हाट इज टू डायमेंशनल मोशन. इसको मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं बच्चों. चैप्टर का नाम यही है, इसी को मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं. सो प्रिडोमिनेंटली तुम्हारा चैप्टर जो है ये 2 डायमेंशनल मोशन तुम लोगों को पढ़ाएगा, लेकिन उससे पहले 1 डायमेंशनल मोशन को भी हम लोग देखेंगे और बाद में 2 डायमेंशनल मोशन पे जाएंगे. वेल, व्हाट अबाउट द एग्जांपल? बच्चों, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ये ऑर्बिट है उसका. मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ ऐसा ऑर्बिट है. तो ये ऑर्बिट जो है ये 2 डायमेंशनल है, बिकॉज सब पोजीशन पे उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होते ही रहते हैं. इज इट ओके? सो दैट इज, और यू कैन से यू आर ड्राइविंग अ कार एंड द कार इज टेकिंग अ टर्न ऑन अ रोड. अभी टर्न ले रहे हैं तो दैट इज नॉट 1 डायमेंशनल, दैट इज 2 डायमेंशनल. Is it okay? चलो, let us go to the third condition and that is 3 dimensional motion. तो कि इसमें क्या होगा बोलो? All 3 coordinates specifying the position of the object change with time. यानी x, y and z सब change हो जाएगा. तो let us see now. This is the x axis, let us say. This is the y axis and the z axis. See here. Okay. Now इसमें भी अगर मैं दिखाऊं, लेट अस से ये एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, z1. अब ऑब्जेक्ट यहां से अगर यहां पे गया है, ये है पॉइंट B जो है x2, y2, z2. सब चेंज हो रहा है देखो. ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग. दैट इज व्हाट इज 3 डायमेंशनल मोशन. वेल, एग्जाम्पल नीचे ऑलरेडी मुंह दिखा रहा है. एनी एग्जाम्पल्स? Shall I give you? Consider the motion of an aeroplane. Okay. एरोप्लेन का मूवमेंट कभी भी देखा है तुम लोगों ने? हाँ, इट वुड बी गोइंग अपवर्ड. अपवर्ड जा रहा है. अभी अपवर्ड जा रहा होगा तो यहाँ पे x एक्सिस का x कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, y कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, बट एट द सेम टाइम इट हैज टू टेक अ टर्न, तो वो ऐसा भी जाता है. तो यहाँ पे x, y, z सब कुछ चेंज हो गया बच्चों. सो अ मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इज 1.
और यू कॅन टॉक अबाउट अ बलून विच इज फॉर एक्झाम्पल, एका बलून मध्ये आपण हिलियम गॅस भरतो आणि त्याला सोडून देतो. तो कसा जातो, तो आकाशात असा 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 वर जायला लागतो. त्याला जाताना असं पाहिलंय. किंवा पतंग, काइट. अभी काइट हम लोग उड़ाते हैं तो काइट का मोशन देखा है, कहीं भी जाएगा वो, कहीं भी. तो उसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स उसमें चेंज जो होते हैं, दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन. इज इट ओके बच्चों? 3 डायमेंशनल मोशन हम लोग पढ़ेंगे नहीं. दैट इज समथिंग वेरी एडवांस्ड. In this chapter, we will be only studying 1-dimensional motion and we will be studying 2-dimensional motion. Okay? So motion along a straight line and motion in a plane. So that will be the 2 parts of the chapter. Okay. We are now starting with the actual chapter. Let us start with it. Look at the next topic. Distance and displacement. बच्चों नया नहीं है, ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तुम लोगों ने. डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट दोघांनाही आपण आता अंडरस्टँड करूया. आधी डिस्टन्स काय आहे बघा. डिस्टन्सला दुसरा शब्द दुसऱ्या पद्धतीने त्याला कसं बोलवायचं असेल तर पाथ लेंथ. Distance or path length is the length of the actual path traversed by a body between its initial and फाइनल पोजीशन. एक्चुअल लेंथ जो हम लोग गिनेंगे. अभी एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डायग्राम के साथ दिया है. देखो यहाँ पे, कंसिडर अ बॉडी मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड देन बी से इट इज गोइंग टू पॉइंट सी. ठीक है. अब ये पूरे जर्नी में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है? इट विल बी ए बी प्लस बी सी. समझ में आया? म्हणजे उदाहरणार्थ तिकडे ए बी समजा 4 सेंटीमीटर आहे, बी सी समजा 3 सेंटीमीटर आहे, तर 4 अधिक 3 4 प्लस 3 विल बी 7 सेंटीमीटर. समझे कि नहीं? सो दिस इज व्हाट इज डिस्टेंस. एक और एग्जाम्पल दे दो. Consider a body moving once around a circle. ये देखो सर्कल. अब एक काम करते हैं, यहां पे ध्यान दे दो. एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं. लेट अस से ये पॉइंट है. लेट अस से पॉइंट ओ, जहां पे एक पार्टिकल है. वो पार्टिकल अब सर्कल पे घूमना चालू कर रहा है. ऐसा मूव करते जाएगा एंड लौट के इधर आ गया. ठीक है बच्चों. डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना रहेगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना रहेगा? इफ दिस इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, आई होप सबको मालूम है ये कितना? आर, दैट इज रेडियस. तो ऐसे में तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? यस, इट इज 2 पाई आर विच मीन्स द सर्कम्फरेंस. इज इट ओके? ओके चलो अब कुछ डिस्टेंस के प्रॉपर्टीज देखेंगे. पहला, डिस्टेंस इज अ स्केलार क्वांटिटी. डिस्टेंस इज अ स्केलार क्वांटिटी. बच्चों डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, देयर इज नो डायरेक्शन. नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो. डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो. अब भी प्रीवियस स्क्रीन पे तुम लोगों ने एग्जाम्पल देखा. मेरे को बोलो निगेटिव इसमें हुआ क्या? वॉज ए बी प्लस बी सी एवर नेगेटिव? नो. वॉज 2 पाई आर एवर नेगेटिव? नो. तो डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव ही रहेगा या फिर वो बॉडी अपने ही जगह पे बैठा रहेगा तो जीरो डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो आइदर पॉजिटिव और जीरो, नेवर नेगेटिव. ये तो सबको मालूम है बच्चों. एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर. ओके चलो अब जाते हैं डिस्प्लेसमेंट. स्टेटमेंट देखो. द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन. द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन. इन अदर वर्ड्स, displacement is the shortest path measured in the direction from the initial point to the final point. अब वही एग्जाम्पल को मैं फिर से दिखाता हूं.
वही एग्जाम्पल, ए से बी गए हम लोग पहले, उसके बाद बी से सी गए हम लोग, तभी हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना ये देखा था, इट वॉज ए बी प्लस बी सी, बट दिस टाइम सी व्हाट आई हैव ड्रॉन, I have drawn a straight line from A to C, A to C, A पासून C, इनिशियल पॉइंट होता A, फायनल पॉइंट आहे C, A पासून C जो ड्रॉ केलेला आहे तोच असेल डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो AC लिख के ऊपर एक वेक्टर साइन डाला है, जिसको आइदर तुम वेक्टर AC करके पढ़ो या AC बार करके पढ़ो। सो हा झाला इकडचा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल भी वही लेता हूं मैं जो तभी लिया था, कौन सा, अपना सर्कुलर मोशन वाला। बच्चों वही पॉइंट पे फिर से घूम के हम लोग आके पहुंच गए, तभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 पाई आर था, अब डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, दैट्स इट, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। कळलं, कारण इनिशियल पॉइंट आणि फायनल पॉइंट तोच आहे, त्यामुळे एवढं फिरून आलो तरी सुद्धा डिस्प्लेसमेंट मध्ये मॅग्निट्यूड राहणार 0। इज इट ओके? चलो अब इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। बच्चों बाय द वे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये याद रखना है तुम लोगों ने। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, द मैग्नीट्यूड इज, ये याद रखना है, हाँ, द मैग्नीट्यूड इज डिस्टेंस कवर्ड, बट माइंड यू शॉर्टेस्ट। समझे कि नहीं, ये याद रखने का। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। तुमने देखा वहां पे ए से बी गया, बी से सी गया, लेकिन वैसे जरूरी नहीं था ना, हम लोग ऐसे ही गए, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, कैसा भी जाके वो फाइनल पॉइंट पे जाने दो, हम लोग सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को ही जोड़ेंगे, वही मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो शेप या जिस पाथ से ऑब्जेक्ट जा रहा है वो पूरा ट्रैवर्स या वो पूरा ट्रेस करते नहीं बैठेंगे हम लोग, सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे ही ध्यान रहेगा अपना। तो इसीलिए उसका दूसरा ऑप्शनल स्टेटमेंट क्या दिया है, देखो, इट विल नेवर गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द एक्चुअल पाथ। ओके, चलो अब यहां देखो, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0, पॉजिटिव, निगेटिव और 0, ये कैसे होगा बोलो। सो इफ आई कंसिडर द एक्स एक्सिस एज माय रेफरेंस डायरेक्शन, लेट अस से ये एक्स एक्सिस है, ओके, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग फ्रॉम द ओरिजिन टिल दिस पॉइंट P, अब ये डायरेक्शन में गया तो वो पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन में गया ना, तो कन्व्हेन्शनली म्हणजे ऍज पर रूल आपण ज्याला बघताना पॉझिटिव्ह साइडच बघतो, त्यामुळे इथे डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्हच असणार आहे। पण आता P पासून समजा तो ऑब्जेक्ट रिटर्न येतोय इथपर्यंत, हा आहे पॉइंट Q, तो समजा रिटर्न आला, तर P पासून Q जो आलेला आहे तो आपण निगेटिव्ह घेणार, P पासून Q जो आलेला आहे तो आपण निगेटिव्ह घेणार, किंवा मग आपण ओरिजिन पासूनच या डायरेक्शन मध्ये गेलो तर हा पण निगेटिव्हच आहे, हा निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस असेल की नाही। तो माझा कन्व्हेन्शन, माझ्या रूल प्रकारे हा पॉझिटिव्ह डायरेक्शन असेल तर हा डायरेक्शन निगेटिव्ह असणार। इज इट ओके? 0 तो ऑब्वियस है, कहीं गया ही नहीं तो 0 हो सकता है। वहां पे देखो पूरा घूम के आ गया, अपन प्रदक्षिणा घालतो, नाइस एग्जाम्पल ना। हम लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान के अराउंड हम लोग प्रदक्षिणा निकालते हैं, देव प्रसन्न होतो त्याच्याने। बट द फनी थिंग इज, अगर हम लोग उसको वेक्टोरियली देखेंगे तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है उधर। एक प्रदक्षिणा डालो डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा
डिस्प्लेसमेंट जीरो, तीसरा डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो यानी आउटकम कुछ नहीं ना, just joking. I mean, it is just to give you an idea that from physics point of view, that movement has zero displacement. Okay? But maybe God would be more happy from the scalar point of it, because हम लोग जितना उसके अराउंड प्रदक्षिणा डालेंगे वो स्केलार फॉर्म में उसका सिर्फ डिस्टेंस देखेगा। तो पहला प्रदक्षिणा 2 पाई आर, दूसरा प्रदक्षिणा विल बी 2 into 2 पाई आर मीन्स 4 पाई आर, तीसरा प्रदक्षिणा डाला तो 3 into 2 पाई आर इज 6 पाई आर। जितना ज्यादा होते जाएगा, आई होप गॉड वुड बी मोर प्लीज्ड। एनीवे, जोक्स अपार्ट, this is displacement, so displacement can be positive, negative or zero. Okay, and the last, its magnitude can be either equal to or less than the actual distance traveled. अभी तभी AB plus BC इतना actual distance था, लेकिन वो A से C डायरेक्टली ड्रॉ किया वो कम था, है कि नहीं? So it can be lesser or it can be equal, but it can never be greater. Magnitude of displacement can never be greater than the actual distance traveled. Okay? और तभी मैंने बोला ना, its magnitude is the shortest distance between the final and the initial position. SI यूनिट तो बच्चों मीटर ही है, CGS यूनिट सेंटीमीटर ही है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ में आ गया। लेट अस प्रोसीड अहेड। चलो स्पीड पे आते हैं। Definition. The rate of change of position of an object with time in any direction is what is displacement, speed, I'm sorry. And it can also be defined as distance traveled per unit time. Okay. So as a formula, speed is equal to distance traveled upon time. Okay. अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, इसलिए स्पीड जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज आइदर पॉजिटिव और जीरो, इसीलिए स्पीड भी आइदर पॉजिटिव और जीरो, बट कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा। एसआई यूनिट सबको मालूम है, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला स्पीड का L1 T minus 1, L raised to 1, T raised to minus 1। बच्चों M raised to 0, अभी नए नए हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं M raised to 0, but maybe from JEE and NEET and CET point of view, you won't have to write any such physical quantity which has a dimensional power 0. Keep that in mind. तो वो नहीं लिखा तो भी चलता है। Okay? अब स्पीड के अलग अलग टाइप्स हम लोग अब स्टडी करेंगे। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? इट इज गिवन देयर दैट इट इज कवरिंग एनी ऑब्जेक्ट कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, आई एम ड्राइविंग माई कार। Okay, I am going a distance of 10 meter in 2 seconds. Okay, next 2 second again 10 meter, next 2 second again 10 meter. काय झालं सांगा? माझा स्पीड युनिफॉर्म आहे, तो कधी बदलतच नाहीये। किती असेल सांगा? 2 सेकंदात 10 मीटर म्हणजे एका सेकंदात किती? 5 मीटर, which means my uniform speed value will be 5 मीटर पर सेकेंड। समझे कि नहीं? उसके बाद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल म्हणजे बदलणारा, कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंसेस यानी पहले 2 सेकेंड में मैंने 10 मीटर लेके गया, मैं आगे के 2 सेकेंड में मैंने 20 मीटर किया, अगले 2 सेकेंड में मैंने 7 मीटर किया। चेंज कर रहा हूं ट्रैफिक के हिसाब से। तो ट्रैफिक के हिसाब से अगर चेंज होते रहेगा तो वो वेरिएबल स्पीड रहेगा। अब बहुत बड़ा तुम लोगों को एक पॉइंट दिया है, ह्याच्यात खूप काही तुम्ही लक्षात ठेवायचे, बहुत कुछ तुम लोगों को याद रखना है। एवरेज स्पीड निकालने का, जहां पे वेरिएबल स्पीड में ऑब्जेक्ट जाता है
total distance traveled divided by the total time. Total distance traveled divided by the total time is what you call as average speed. तो एक फॉर्मूला क्रिएट करना है एवरेज स्पीड के लिए. तो यू कैन सी देयर फॉर अ बॉडी कवरिंग डिस्टेंसेस S1, S2 and S3 dot 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 with speeds V1, V2, V3 dot dot in time T1, T2, T3 dot dot respectively. म्हणजे कळलं का? म्हणजे कळलं. आधी टाइम T1 घेतोय मी, हा टाइम T1 घेतोय. त्या T1 मध्ये जो ऑब्जेक्ट जातोय त्याचा स्पीड असेल V1 आणि तो कव्हर करतोय डिस्टन्स S1. मग असेल टाइम T2 ज्याच्यात त्याचा स्पीड बनतोय V2 आणि तो डिस्टन्स कव्हर करतोय S2. असं आहे ते. तर एव्हरेज स्पीड कसा काढणार आपण? टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड म्हणजे सगळे डिस्टन्सेस आपण ऍड करतोय, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम म्हणजे सगळे टाइम आपण ऍड करतोय. अब इसी को तुम्हारे प्रॉब्लम में जैसे डाटा दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से तुम लोग फॉर्मूला को चेंज करोगे. अब यहाँ पे तुम्हारे डिस्टेंसेस एंड टाइम वैल्यूज दिए, लेकिन यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला में तुम लोग देख रहे हो डिस्टेंसेस दिए हैं एंड हर एक डिस्टेंस पे कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड वैल्यूज दिए हैं. तब ये फॉर्मूला यूज करोगे. और ये तीसरा फॉर्मूला जहां पे डिस्टेंसेस दिए ही नहीं है, हर टाइम स्लॉट में तुम्हारे स्पीड वैल्यूज दिए हैं. तो यहाँ V1 कॉरस्पॉन्डिंग टू T1 दिया है, V2 कॉरस्पॉन्डिंग टू T2 दिया है, डिवाइडेड बाय. तो कोणता फॉर्म्युला वापरायचा आहे तुम्ही डाटा बघा न्यूमेरिकल मध्ये आणि त्या हिशोबाने यू हॅव टू यूज द फॉर्म्युला. ओके, दॅट इज व्हेरिएबल एव्हरेज स्पीड. अँड लास्ट इज इन्स्टंटेनियस स्पीड. इंस्टंटेनियस म्हणजे एका इन्स्टेंटचा, एक इंस्टेंट का स्पीड. बच्चों ये हम लोग जनरली देखते हैं स्पीडोमीटर पे. अपने कार में या कोई भी व्हीकल हम लोग चला रहे हैं जिसके ऊपर जो स्पीडोमीटर रहता है उसके ऊपर हम लोग क्या एक इतने डिस्टेंस और इतने टाइम इंटरवल पे एवरेज निकालते नहीं बैठते. मेरा ध्यान स्पीडोमीटर पे एक इंस्टेंट पे जाता है देखने के लिए कि अरे इस इंस्टेंट पे मेरा कार कितने स्पीड पे है. तो वो जो वैल्यू उस इंस्टेंट पे दिखाता है इट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस स्पीड. नीचे लिखा है देखो, स्पीडोमीटर गिव्स यू इंस्टैंटेनियस स्पीड. निकालते कैसे हैं बच्चों? मैथमेटिकल मेथड्स थोड़े से देखे होंगे तुम लोगों ने, डेरिवेटिव देखा रहेगा. V instantaneous will be found out as the first order derivative of distance with respect to time, dx upon dt. अब डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है उसमें डेल्टा एक्स अगर डिफरेंस इन पोजीशंस है अपॉन डेल्टा टी इज अ टाइम इंटरवल. वो टाइम इंटरवल को छोटा 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 करते जाओ, त्यालाच आपण तिकडे लिहितो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू झिरो. कैसे पढ़ने का? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू झिरो of delta x upon delta t. Now this is the basic definition of finding a derivative. मग त्याला आपण डेरिवेटिव्हच्या भाषेत लिहितो dx upon dt. This is what is instantaneous speed. ठीक है, चलो स्पीड का बड़ा भाई वेलोसिटी. अब वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम. ओके, अब इधर तुम्हारा स्पीड जो था स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी. बट वहां बाजू में देखो क्या दिया है, इट इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन. इसका मतलब वेलोसिटी में जो मैग्नीट्यूड पार्ट रहता है ना वो स्पीड रहेगा. समझे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्राइविंग माई कार विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट डायरेक्शन. आता त्याच्यात मी फक्त 50 किलोमीटर पर आवर म्हटलं तो वो स्पीड था. जब मैंने बोला कि इन द ईस्ट डायरेक्शन तो वो डायरेक्शन भी उसमें ऐड हो गया और वो वेलोसिटी बन गया. जब डायरेक्शन हम लोग नहीं बोलेंगे तब वो स्पीड ही रहेगा. ओके
नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को देखा था कि इट कुड बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। बस उसी हिसाब से इवन वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। नेक्स्ट, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, वो वहां भी था स्पीड में, यहां भी सेम है। सीजीएस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला इज द सेम। ओके, so that was about the basic definition of velocity. Let us go to different type of velocities. Uniform velocity, बच्चों वहां यूनिफॉर्म स्पीड में क्या डिफाइन किया था? कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब क्या बोलेंगे? कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फक्त त्या स्केलार वरनं त्याला वेक्टर बनवा आता, ओके, बट बाकी उसका आइडिया सेम ही है। नेक्स्ट, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। अब वेलोसिटी चेंज होना का मतलब क्या है? तो आंसर है वेलोसिटी चेंज होना यानी या तो उसका स्पीड कम ज्यादा होना या फिर इवन डायरेक्शन बदलना। गेटिंग इट? डायरेक्शन बदलना यानी अगर मैं कार चला रहा हूं विथ अ वेरी कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, I am driving my car with a speed of constant speed of 50 kilometer per hour. The road has a turn. I am taking a turn but keeping the speed constant. यानी मैंने वो टर्न लेते हुए मेरा स्पीड कम ज्यादा नहीं किया है। But बच्चों, if I use the word velocity, then I cannot say the velocity has remained constant. The magnitude remained constant, यानी speed remained constant, but the direction has not remained constant. It has changed. तो डायरेक्शन भी सिर्फ चेंज हो गया तो भी हम बोलते हैं वेलोसिटी चेंज हो गया। Is it okay? So either the magnitude changing or direction changing or both changing with time is what you call as variable velocity. अब जहां वेरिएबल वेलोसिटी का टाइम आएगा तो यहां भी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो यहां भी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बट माइंड यू टोटल डिस्प्लेसमेंट इज अगेन डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड final position, and that is why at two time instants, let us say t1 and t2, if the positions are x1 and x2, then the average velocity in that time interval would be given by, you can see there, x2 minus x1 upon t2 minus t1, which is delta x upon delta t. Finally, instantaneous velocity means again velocity at a given instant of time. तो वही जो ऊपर देख रहे हो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, उसमें डेल्टा टी ये टाइम इंटरवल को छोटा 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 करते जाओ तो एक इंस्टेंट लेवल पे जाएगा वो, ज्याला आपण डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो म्हणतो। सेम फॉर्मूला फिर से आ गया, सिर्फ वेक्टर साइंस है, देखो इसमें सिर्फ वेक्टर साइंस है इसमें। इज इट ओके? सो ये हो गए वेलोसिटीज के टाइप्स। सो ये हो गया वेलोसिटी। लेट अस गो टू कायनेमॅटिक्स ऑफ युनिफॉर्म मोशन। अजून आपण ऍक्सिलरेशन वर गेलेलो नाही आहोत, इसीलिए वहां पे यूनिफॉर्म मोशन करके बोला है। लेट अस स्टार्ट विथ इट। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v along the positive direction of x-axis occupies positions x0, x and x dash with respect to origin point O. ये हम अब डायग्राम में दिखाएंगे। See here, this is the x-axis, origin point O. हम लोग तीन पोजिशंस दिखाएंगे यहाँ पे। पहला है जहाँ x0 पोजिशन है, दूसरा है जहाँ x है, और तीसरा है जहां x डैश है। ऊपर जो लिखे हैं वो टाइम इंस्टेंट्स हैं, यानी एट टाइम t इक्वल 0 हम लोग x0 पे है, वो ऑब्जेक्ट x0 पे है। एट टाइम t इट इज एट x एंड एट टाइम t डैश इट इज एट x डैश। ओके, यानी बेसिकली वो मूव हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट along the straight line that is along the x-axis. It is moving here, uniform है, हाँ, straight जा रहा है।
तर तो इथून जेव्हा चालू करतो तो टाइम 0 आहे, बट जो इथे पोचतो तेव्हा टाइम t आहे आणि इथे पोचतो तेव्हा टाइम t डॅश आहे. इज इट ओके? तो ये जब हो रहा है तो 0 से t का टाइम इंटरवल में हम लोग अगर वेलोसिटी निकालेंगे देन इट विल बी x माइनस x0 अपॉन द टाइम डिफरेंस इज t माइनस 0. अब उसी से आता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी. ओके, चलो t से t डैश में जाते हैं. बच्चों द वेलोसिटी वैल्यू इज कांस्टेंट ना, इसलिए वो v तो अभी भी सेम ही रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी क्या हो गया बोलो? फाइनल पोजीशन इज x डैश, इनिशियल इज नॉट 0 x नॉट, नाउ इनिशियल इज x. सिमिलरली टाइम instants are not t and 0, now it is t dash and t, and therefore difference बघा तिकडे काय आहे. तो उसी से फॉर्मूला कैसे बन गया? x dash is equal to x plus v into t dash minus t. Is it okay? अब इसी को थोड़ा जनरलाइज करेंगे. ये देखो x माइनस एक्स नॉट को हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s करके लिखेंगे. तो ये तुम्हारा जाना पहचाना फॉर्मूला जो 9 स्टैंडर्ड से आया हुआ है. s इज इक्वल टू v इंटू टी. s म्हणजे डिस्प्लेसमेंट, v म्हणजे वेलोसिटी, t म्हणजेच टाइम. इज इट ओके? ये सिंपल सिचुएशन था, लेकिन ये फॉर्मूला को बच्चों थोड़ा सा याद रखने का, दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को थोड़ा याद रखो, ठीक है. एंड ये तो है ही, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो जनरलाइज्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इज इट ओके? चलो अब जाते हैं एक्सेलरेशन. बच्चों जहां वेरिएबल वेलोसिटी आएगी हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट या बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है. हाउ डू यू डिफाइन? Rate of change of velocity of an object with time. Okay, so acceleration is change in velocity upon time taken. Okay, अब velocity वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए acceleration भी वेक्टर क्वांटिटी है. अच्छा, velocity का चेंज का जो भी डायरेक्शन रहता है acceleration का भी सेम ही डायरेक्शन रहेगा. ऐसा यूनिट सबको मालूम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. CGS unit is centimeter per second square. I'm sorry here, this is not speed, this is acceleration. Is it okay? Next, if velocity increases with time, then acceleration is positive. If velocity increases with time, then acceleration is positive. Okay, but okay, any example? Well, I started my car, I am increasing its velocity by pushing its accelerator. I find the velocity is increasing. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसीलिए एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ही रहेगा. ओके, सो गाड़ी एक्सेलरेट करना, स्पीड बढ़ाना या एक ही डायरेक्शन में स्पीड बढ़ाना, उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे. इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम, if velocity decreases with time, then acceleration is negative, which is called as retardation या deceleration. बच्चों फास्ट जाते हुए कार को हम लोग ब्रेक मारेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम होते जाती है, यालाच आपण निगेटिव्ह ऍक्सेलरेशन म्हणतो किंवा रिटार्डेशन किंवा डिसिलरेशन. ओके, उसका एग्जाम्पल अब भी बोला मैंने, ब्रेक मारो कार को तो जो गाड़ी स्लो डाउन होते जाती है, दैट इज व्हाट इज रिटार्डेशन. इज इट ओके? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, सेम कंडीशन है. पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहां वेलोसिटी चेंज होती है इक्वल अमाउंट्स में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. जनरली हम लोग यही पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही पढ़ा जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन, जहां पे वेलोसिटी कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा होगा इन अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम.
ओके। एवरेज एक्सेलरेशन जहां पे वेरिएबल एक्सेलरेशन है वहां पे मैं एक टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा बिटवीन टू टाइम इंस्टेंट्स एंड वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन द टाइम इंटरवल निकालूंगा तो आई गेट एवरेज एक्सेलरेशन। एंड लास्ट में आता है, हाँ ये तो तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। एंड लास्ट में आता है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वही अब भी जो फॉर्म्युला देखा था त्याच्या डेल्टा टी अगेन टेंडिंग टू 0 करा तर तुम्हाला मिळतो तो इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। बच्चों यहां पे तुम लोग देख रहे हो dv बार बाई dt इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विच इज एक्सेलरेशन, बट वेलोसिटी इटसेल्फ वाज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज व्हाई ये देखो v is equal to dx by dt था and therefore a will be the second order derivative of displacement with respect to time, ज्याला लिहिताना d square x by dt square असे आपण लिहितो। See there. So acceleration is the first order derivative of velocity and second order derivative of position with respect to time। Position बोलो या displacement बोलो बात एक ही होगी यहाँ पे। Is it okay? So these are all the ideas, the types of acceleration. So we have finished with all the basic parameters which are needed towards studying motion in वन डायमेंशन राइट नाउ। यही टू डायमेंशन भी में भी यूज होगा लेकिन अब वन डायमेंशन में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके अब इसके आगे का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपिक विच आई विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर द टाइम बिंग आई होप you may have understood all these things. Please revise. Thank you.